my aim to cover the total unconventional machining part today. Today means it will be take the 2 hour 3 hour or what the time it will take, we will cover this the total machining part. So unconventional machining अगर हम पढ़ लेते हैं तो 5 मॉड्यूल 6 मॉड्यूल और 7 मॉड्यूल will be covered. सो वी विल बी वेरी 10 to 20 क्लास लगेगा इसमें कवर करने में और ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो टू डेज आई एम फोकसिंग टू द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग इज डिवाइडेड इनटू द 3 मॉड्यूल. Which one is the unconventional machining process? The first one is abrasive jet machining, water jet machining. Abrasive water jet machining, there is a two different process, water jet machining and abrasive water jet machining. And the third one is ultrasonic machining. और ये सभी का प्रिंसिपल प्रोसेस कैसे होता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. तो ये टोटल जो मॉड्यूल है इसको एक मॉड्यूल बनाया. फिर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, प्रिंसिपल प्रोसेस, मेटल रिमूवल रेट. नाउ द ईडीएम, इलेक्ट्रोकेमिक ईडीएम खत्म होगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. इसको मीन्स यहाँ पे 2 मशीनिंग पढ़ना है. मतलब ईडीएम, ईडीएम को बोलते हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रो स्पार्क मशीनिंग. नाउ द सेकंड वन इज in model 6 ECM. ECM इसको बोलते हैं electrochemical machining. So this one is contained in module 6. So now the another 3 machining process, which one is non-traditional, is module 8, module 7. Which one is the laser beam machining, plasma arc machining and electron beam machining. So how many total types of non-conventional machining you have to be studied? Means the first module there are 4 types of machining, 4. The second module, the sixth module, the 2 machining means the EDM and ECM. So 4 plus 2, 6 and 6 plus 3, laser, plasma and electron beam. So total 4 plus 2, 6 plus 3, total 9 machining is required your syllabus to cover this. So total 9 types of non-conventional machining are your in syllabus. So I want to cover all this machining process today itself. So be with me till I don't say that you are now free. So if after 40 minutes the connection will be discontinued, then you may be directly be join again without my instruction. So now let us see in the syllabus. Anybody can we tell why that this machining is divided into 3 different modules? Means this module 5 have the certain number of machining. Non-conventional machining means the abrasive jet machining, water jet machining, abrasive water jet machining and ultrasonic machining. और अदर मशीनिंग प्रोसेस को अलग मॉडल में डिवाइड किया गया. ऐसा क्यों किया गया? एनीबॉडी हैव एनी आंसर? क्या सर? मेरा पूछने का मतलब है कि ये सभी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है, लेकिन इसको डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया. ये चारों मॉड्यूल को ही एक मॉड्यूल में रखने का क्या प्रयोजन है? ये 4 टाइप का मशीनिंग सब हाँ तो मैकेनिकली किया जाता है सर. मैकेनिकल.
मैकेनिकल वर्क, मतलब मैकेनिकल वर्क करके इसको किया जाता है Actually, प्रोसेस। the process of the metal removal, the process of the metal removal for the abrasive jet machining, water jet machining, abrasive water jet machining and the ultrasonic machining में प्रोसेस जो है मैकेनिकल प्रोसेस मेटल रिमूवर का सेम है, इज इट? और कौन से प्रोसेस से ये मेटल यस रिमूवल सर। करता है? दैट इज कॉल्ड इरोजन। यस सर, इरोड करते हैं। Erosion is take place for removing the material from the workpiece. So we can say that the unconventional machining process where the abrasive jet, water jet, abrasive water jet and ultrasonic machinings are involved, where the metals are eroded or erosion will be take place for the removing the material, and erosion is doing the work due to the abrasive material is the taking into the picture. अभी क्या है कि पिक्चर में एक आएगा एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है? देयर इज अ डस्ट पार्टिकल ऑफ द मेटल पार्ट, डस्ट पार्टिकल ऑफ द मेटल पार्ट। इट मे बी सैंड भी हो सकता है, कभी कभी हम यूज करते हैं सैंड जो होता है थोड़ा हल्का मोटा। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी होता है ना? सैंड भी कभी कभी लेते हैं, बट इन जनरल वी विल यूज द एल्युमिनियम ऑक्साइड का डस्ट, सिलिकॉन कार्बाइड का डस्ट, विच विल बी यूजफुल फॉर मशीनिंग विच टाइप्स ऑफ वर्क पीस यू हैव। अगर वर्क पीस बहुत हार्डर है, टफर है, तब हम किस तरह का एब्रेसिव यूज करें। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम थोड़ा सॉफ्टर है लेकिन उसका डस्ट काफी एब्रेशन वाला जो होता है उसका डस्ट काफी नोकीला होता है। वो मटेरियल वो वर्कपीस पे जब जाएगा तो दैट विल बी पुट ऑन द प्रेशर ऑन द वर्कपीस एंड दैट वर्कपीस में मटेरियल को रिमूव कर देगा। उस ड्यू टू द फोर्स्ड एब्रेसिव पार्टिकल will be focused on the material, and due to this the material from the workpiece is eroded. That is, I am telling you that the process of this machining of abrasive jet, water jet, ultrasonic machining and abrasive water jet machining or water jet machining is the process is same, or that is the process is called erosion due to abrasion. Is it clear? सो पहला क्वेश्चन आपका किसी भी इंटरव्यू या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग है उसका कौन सा प्रिंसिपल पे वो मटेरियल को रिमूव करता है। तो पहला 4 मशीनिंग जो आपका सिलेबस में है उसका जो काम है वो इरोजन ड्यू टू एब्रेशन पे काम करता है। It is a mechanical phenomena, but the erosion due to abrasion. Now we will move slowly from the separate machining process. So first the unconventional machining का टोटल नोट्स आज प्रोवाइड कर देंगे, सारे टोटल आज मिल जाएगा आपको, इसको आप रीड करना है। पहले डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो होता क्या है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग को नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहते हैं। अनकन्वेंशनल मशीनिंग का मतलब है पहले जो मशीनिंग होता था मींस बाय द हेल्प ऑफ लेथ मशीनिंग, सेपर मशीनिंग, ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन। तो इसमें क्या है कि हमको वर्कपीस और मटेरियल को आपस में टच करवाना पड़ता था, और टच करने के बाद उससे मेटल का जो रिमूवल होता था उसका जो प्रोसेस था शियर डिफॉर्मेशन और शियर फेल्यूर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब मटेरियल जो कन्वेंशनल मशीनिंग होता था लेथ से, ड्रिल से, मिलिंग से, ग्राइंडिंग से, दैट ऑल द प्रोसेस आर involved when tool and workpiece are meet to each other, but
उसमें क्या था कि वर्कपीस को तो हमको ले जाना पड़ेगा ना मशीन के पास, इज इट? अब बड़ा सा लेथ मशीन को हम ले जाके वर्कपीस के पास थोड़ी हम मशीनिंग करेंगे, हमको वर्कपीस को लाना है मशीन के पास और दोनों को मेट करवाना है, और दोनों मेट करने के बाद मशीन हैव टेक कंजम्पशन ऑफ द पावर एंड द metal will be removed due to the shear deformation. But इन द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग जब स्टार्ट हुआ, मतलब उस समय वो ट्रेडिशन में नहीं था, सो ऑल द साइंटिस्ट दे आर कॉल्ड, इट इज द नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशन में नहीं था उस समय, तो वी विल स्टार्ट न्यू, सो दिस वन इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिशनल आल्सो। सो इसमें वर्कपीस और टूल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सो मटेरियल्स विल बी रिमूव्ड, नॉट बी रिमूव्ड बाय द shear deformation, it will be removed by the process of erosion, abrasion, melting and evaporation, ion displacement, इलेक्ट्रोथर्मल डिस्प्लेसमेंट के कारण, इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी के कारण भी मेटल विल बी डिस्प्लेस्ड एंड मेटल विल बी हीटेड, इवेपोराइजेज। तो इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम मेटल टू मेटल वर्कपीस नहीं होगा। सो एक्यूरेसी अभी क्या है कि जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स जगह पे हमको वेल्डिंग या फिर मेटल को रिमूव या होल बनाना है, तो वहां पे हम ड्रिलिंग मशीन के पास वर्कपीस को ले जाना है ना। अब ड्रिलिंग मशीन के पास तो हम वर्कपीस ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरा वर्कपीस बड़ा है। तो अभी क्या करेंगे, तो हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो छोटा छोटा होता है उससे हम उस जगह पे जाकर मशीनिंग कर पाते हैं। तो इसीलिए ये काफी यूजफुल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का जो जो ड्रिल वगैरह, ड्रिलिंग कैविटीज जो बनाना होता है, तो उसके लिए हम दिस नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग इज वेरी मच यूजफुल। सो दिस जो मशीनिंग का प्रोसेस फिजिबल नहीं हो पाता था नॉन कन्वेंशनल के थ्रू, उसका हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल। जनरली ब्रिटल मटेरियल जो मशीनिंग करते थे, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि वर्कपीस और जब टूल का कांटेक्ट होगा न, जो नॉन कन्वेंशनल जो कन्वेंशनल मशीनिंग में हम नहीं कर पाते थे क्योंकि वो फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है, शियर से पहले वो फ्रैक्चर स्टेट में पहुंच जाता है। तो वैसे वैसे मटेरियल्स का मशीनिंग नॉन कन्वेंशनल के द्वारा इजीली हो जाता है। सो देयर आर 8 types, or we can say that is there 9 types actually, because your syllabus contain the 9 types, so I am written 9 types of non conventional machining you have to study. The first one is the ultrasonic abrasive jet machining, water jet machining and abrasive water jet machining. It is a 6 module. So these all module में जो mechanism है और the process है erosion, that is called erosion. जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इसका प्रोसेस में दोनों में इलेक्ट्रिक एनर्जी लगता है, इसलिए दोनों को एक में दे दिया। लेकिन इसका जो प्रोसेस है ईडीएम का और ईसीएम का, दोनों का अलग है। इसका जो प्रोसेस है मेटल रिमूवल का, वो आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इलेक्ट्रॉन आयन डिस्प्लेस कर देता है वर्कपीस से और ये मशीनिंग हो पाता है, आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सब हम लिख दिए हैं नोट में नीचे सबसे डाउन में, द प्रोसेस जिसके कारण से ये मेटल रिमूव होता है। इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में क्या होता है, स्पार्क विल भी जनरेट होता है और इसका जो मैकेनिज्म है वो है मेल्टिंग एंड इवेपोरेटिंग। हाई हीट जनरेट करता है, मेल्ट होता है और फिर एक स्लरी आइटम जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उस हीट को कूलिंग करके बाहर कर देता है मटेरियल रिमूवल के साथ। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड इवेपोरेटिंग। सो लेजर बीम बेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग एंड प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, these are all the process for melting and evaporation. So working principle इसका क्या है, मेल्ट होगा मटेरियल और उसको इवेपोरेट और वेपोराइज किया जाएगा। इसका तीनों का प्रोसेस है मेल्टिंग एंड वेपोराइजिंग या इवेपोरेटिंग। नाउ
first we are start from the ultrasonic machining process. So ultrasonic machining process कैसे होता है? We have seen. So पहला ये चीज जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज हमें जनरली ब्रिटल मटेरियल लाइक ग्लास, समथिंग कास्ट आयरन और टफर, जो टफर मटेरियल नहीं है और जो काफी हार्ड है और जो तुरंत मतलब वो अपना इलास्टिक लिमिट के बाद सीधा और सीधा फेलियर स्टेट पे जाता है, वैसे मटेरियल का हम मशीनिंग इसमें करते हैं. सो इसमें एक क्या यूज करते हैं, इसमें भी एक एब्रेसिव सैलरी, इसमें इरोजन के थ्रू इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट विल बी काउज द इरोजन, मतलब इरोजन होगा तो इरोजन के लिए मतलब मटेरियल पे प्रेशर लगाएगा और इरोजन के लिए एक एब्रेसिव मटेरियल चाहिए. सो एब्रेसिव मटेरियल का यूज करेंगे इसमें. सो एब्रेसिव स्लरी आर यूज्ड फॉर मशीनिंग. So these abrasive slurry are generally the aluminum ऑक्साइड लेते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड लेते हैं, बोरोन ऑक्साइड का डस्ट लेंगे और डायमंड ऑक्साइड का डस्ट लेंगे. ये मतलब सब एक साथ नहीं लेंगे, कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क पीस मेरा कितना हार्ड और कितना ब्रिटल है. So extent of the workpiece, we are use the different types of the abrasive slurry, that means the aluminum, silicon, boron oxide or boron carbide और diamond oxide. एक्चुअली तो एब्रेसिव मटेरियल का बस समझना है, ये बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है जिसमें थोड़ा सा शार्प एज भी रहता है, जिसके कारण से इसको हाई वेलोसिटी से किसी भी मटेरियल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अगर उसको पास करवाया जाए तो उस मटेरियल में से ये मटेरियल को इरोड करके बाहर कर देता है. सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज द इरोजन को कंप्लीट करवाने के लिए. So it work on the magnetostrictive action principle. So आपको बताएंगे magnetostrictive action principle क्या होता है. सबसे पहले तो हम इसमें आपका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा रहता है. इसमें क्या होता है कि एक रॉड में कॉइल कर देते हैं और इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर. एक ट्रांसड्यूसर होता है, इस ट्रांसड्यूसर के ऊपर कॉइल किया हुआ रहता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से सप्लाई करवाते हैं. इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉइल जो उस पर ओवरलैप होता है तो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशन. सो ट्रांसड्यूसर ये बन जाता है आफ्टर द कॉइलिंग फ्रॉम ऑन टू द रड एंड व्हेन द पावर विल बी सप्लाई. सो पावर सप्लाई से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द वाइब्रेशन. सो एक्चुअली होता क्या फिनोमेना, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में आप सुने होंगे. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स टाइप का बिहेव ये करवा देता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देना मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी मींस द वाइब्रेटिंग एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिला, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें स्ट्रेन डेवलप किया. स्ट्रेन मतलब कि डिफॉर्म करना शुरू किया. दैट डिफॉर्मेशन इज कॉज द स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस क्या किया, उसको हिलाना, डिफॉर्म करना और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. So this transducer is work actually the magnetostrictive action, means ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाइब्रेटिंग एनर्जी में. सो ये टूल विल बी वाइब्रेटिंग. और यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेटर यूज करते हैं. कॉन्सेंट्रेटर का क्या काम है कि जो वाइब्रेटिंग एनर्जी जो मिला है इसको वो कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे टूल के ऊपर यहाँ पे टूल लगा देते हैं. दिस टूल्स आर वाइब्रेटिंग. सो दिस ट्रांसड्यूसर एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जो ट्रांसड्यूसर चेंज कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में, दैट मैकेनिकल एनर्जी विल बी यूज एज ए वाइब्रेटिंग.
सो ये टूल क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन वर्कपीस पे कांटेक्ट नहीं करने होगा। फिर दूसरा यहाँ पे एक चैम्बर लेते हैं। इस चैम्बर में आपका स्लरी आइटम जो है, स्लरी एब्रेसिव आइटम, एब्रेसिव जो है कुछ वाटर के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम डाल देते हैं। एब्रेसिव को थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसमें करंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये थोड़ा वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए हम एक फिक्सर का यूज कर लेते हैं। फिक्सर मतलब इट गिव द सपोर्ट टू द वर्कपीस। और इस चैम्बर में हम कुछ ऑयल के साथ एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं, एब्रेसिव मटेरियल्स को डाल देते हैं, और इस एब्रेसिव मटेरियल को पंप लगा के यहाँ पे एक पंप लगा दिए, और इस एब्रेसिव मटेरियल को पंप लगा देते हैं। तो ये पंप के द्वारा जहां पे टूल वर्कपीस है वहां पे इसको फोकस्ड करवा देते हैं एब्रेसिव को यहाँ पे। तो दैट पंप्स प्रोवाइड द एब्रेसिव मटेरियल, एंड ड्यू टू दिस एब्रेसिव मटेरियल हाई कॉन्सेंट्रेटेड, चूंकि अब देखो यहाँ पे पाइप से लगा के ये काफी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं मटेरियल्स के ऊपर, और these tools are vibrating to keep the focused or give the focus concentration to the workpiece of the abrasive material particle। ये मटेरियल एब्रेसिव मटेरियल पार्टिकल को एक डायरेक्शन देता है कि आपको कहां पे स्ट्राइक होना है वर्कपीस पे। जहां पे डिजायर है वहां पे हम वर्कपीस और अपना जो टोटल सेटअप है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, वहां पे हम जाकर लगा देते हैं। और इस कारण से ये फोकस होकर ये टूल वाइब्रेटिंग डायरेक्शन देता है एब्रेसिव को, और ये एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जिस कारण से मटेरियल्स यहाँ से इरोड हो जाता है, और फिर ये जो स्लरी आइटम है, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, वो उसको बहाकर उसको ले जाता है, और फिर से उसको रिसाइकल से पंप करते रहता है। सो दिस टोटल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जनरली जो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर में कॉइल लपेटा होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और दिस मैग्नेटिक फील्ड convert the electrical energy into the vibrating energy, and the pump and the chamber of where the workpiece are placed is filled with the slurry item, and slurry are contained the abrasive material, and abrasive material is then goes by the pump and focus concentrate to the workpiece, and workpiece or the vibrating tool will be provide the direction to feed the abrasive materials. So materials are eroded from the workpiece due to the erosion and by the abrasive particle. So this the phenomena is generally occurred in the case of ultrasonic machining. So everything, exciting coil, feed mechanism, concentrator are used to concentrate the energy from the tool. So ultrasonic machining का जितना process हम बताएं, this all process are written in this note. So you may study, or if not, then I will dictate it. The process which I am telling is the same. अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में वाइब्रेशनल वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी, देखो 10 मिनट का अलार्म मिला है, इसलिए यू हैव टू ज्वाइन अगेन एंड अगेन। सो स्लरी आइटम्स होता है, ट्रांसड्यूसर होता है विच विल बी कन्वर्ट द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशन एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव एक्शन। सो बोरॉन एब्रेसिव, जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम डस्ट होता है। सो यूसियम आर सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड मीडियम में होता है, जिसमें लिक्विड और ग्लिसरीन, बेंजीन, ग्लाइकोन, ऑयल आर यूज करते हैं एब्रेसिव मटेरियल के साथ। जो मटेरियल रिमूव होता है उसको वो साथ में लेके चला जाता है। सो इट इज अ वेरी इजी ऑपरेशन,
डिसएडवांटेज है, इट इज वेरी डिसएडवांटेज है, इट इज लो, इसमें मटेरियल एब्रेशन से जो मटेरियल रिमूव होगा उसका मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा, क्योंकि वो केवल और केवल एब्रेसिव पार्टिकल्स को स्ट्राइक करके करता है, तो वो मेटल रिमूवल पार्ट इसमें कम होगा। इसका यूज हम जनरली ड्रिलिंग, होल बनाने के लिए, कार्बाइड टूल में और ब्रिटल मटेरियल्स में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द वाटर जेट मशीनिंग। तो वाटर जेट मशीनिंग कोई देखा है? Anybody can have you seen the water jet machining? देखे नहीं है सर। देखे नहीं है, हम बताते हैं, कहीं कहीं देखे होंगे। कार पर से जो कार होता है उसको साफ करने के लिए या फिर प्लास्टिक पेंट चढ़ाने के लिए पहले हम जो पेंट होता है या फिर कहीं कहीं पे कुछ पार्ट इरोड हो जाता है उसको हम हटाने के लिए वाटर जेट का एक इस्तेमाल करता है। एक गन होता है जिसमें वाटर का फोर्स से प्रोवाइड करता है, जिससे जो पहले जो पेंट वेंट लगा होता है वो इरोड होकर हट जाता है और फिर उसके बाद दूसरा पेंट उस पर चढ़ाता है। ये कभी देखा है कि किसी को पेंटिंग करते कार पे पेंटिंग करने से पहले वो पहले जो मतलब जब दूसरा बार जो पेंट करवाने जाते हैं कार को, तो उसमें क्या करता है कि पहले पेंट वेंट जो लगा रहता है ना उसको हटाता है, तो दैट मटेरियल्स कैन बी रिमूव्ड बाय द इरोजन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर। इट इज सो water is generally used to erode the material. In the water jet machining, water is used to erode the material, generally used for the softer material के लिए यूज करते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल के लिए ज्यादा यूज होता है और जनरली मेटेलिक मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। सॉफ्टर मटेरियल, वाटर, प्लास्टिक्स एंड रबर, ये सब में से जब हमको किसी चीज को रिमूव करना है वाटर के फ्लो से, वाटर के वेलोसिटी से, वाटर का काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसको, द प्रिंसिपल ऑफ द मेटल रिमूविंग इन द केस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग इज दैट वाटर का काइनेटिक एनर्जी जो है, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम फोर्स देने से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली में वाटर जब फोर्स लगाता है और जिस मटेरियल पे वो फोर्स लगाएगा, जो वर्क पीस होगा, वो काइनेटिक एनर्जी जब उस पे लगेगा तो वो काफी प्रेशराइज हो जाएगा और दैट प्रेशर विल काउज द स्ट्रेस and that stress is caused to remove the material. So this one is very simple. The water jet machining is the machining principle is that the water is used, generally the soft material principle क्या है इसका? The principle of erosion the material, erode the material of material। ये बारिश में क्या कर रहा है मनोज कुमार महतो? छाता लेके पढ़ रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर जेट, वाटर का जो जेट होता है एक्चुअली में इसमें नोजल, वाटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं नोजल में डिक्रीजिंग एरिया होता है, सो द प्रेशर, सो द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कैन बी इंक्रीज्ड। सो वाटर एनर्जी जो होता है कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर एनर्जी में और प्रेशर इज यूज्ड टू डेवलप द स्ट्रेस ऑन द मटेरियल एंड materials goes to removed। so high velocity, तो वाटर की जब काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा करेंगे तब तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो वाटर का जो वेलोसिटी है वो काफी हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर हम यूज करेंगे इसमें। देन द प्रेशर विल डेवलप, कितना प्रेशर डेवलप होगा? 200 MPa से 400 MPa प्रेशर विल बी जनरेटेड। सो लेट अस लुक द डायग्राम ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। कैसा होता है? सबसे पहले तो हमको वाटर चाहिए, पानी चाहिए एक टैंक में, तो एक टैंक रहेगा जिसमें पानी रहेगा और बाकी पानी को हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ले लेंगे जो रिजर्वायर करके एक ग्राउंड स्टेट पे पानी रखेगा। वो वाटर को विल बी मूव टू द गिव द हाई स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमको देना है वाटर को। सो क्या करेंगे कि वाटर को पंप करके एक इंटेंसिफायर लगा देंगे।
इंटेंसिफायर लगाने से क्या होता है कि वाटर का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करेगा। सो प्रेशर इंक्रीज करके इसको एक्यूमुलेटर में वाटर को पहुंचा देते हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक्यूमुलेटर इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ हाई प्रेशराइज वाटर. So this one is a reservoir, is a permanent storage of the water, and this one is the accumulator, which will be, which one is the temporary storage of high pressure water. High pressure water जो पंप और इंटेंसिफायर से लाके दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं. So now the one control valve, now this water, pressurized water will be goes to the control valve, and control valve उसको desired direction provide करेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे मशीनिंग करना है, कहाँ से मटेरियल को इरोड करना है. वो कंट्रोल वॉल्व एक डिजायर्ड डायरेक्शन देगा, और उसके साथ एक वॉल्व लगा रहेगा जिसको बोलते हैं फ्लो रेगुलेटर वॉल्व, कि कितना प्रेशर हमको कम बेसी वाटर के फ्लो को जेट फ्लो को करेंगे उस कंट्रोल फ्लो वॉल्व रेगुलेटर से. सो ए वन रेगुलेटर हैज बीन प्लेस्ड over the control valve, and this water is now we goes to a नोजल. तो यहाँ पे एक नोजल लगा देंगे जो वाटर के प्रेशर को नहीं बल्कि बोलो कि वाटर के वेलोसिटी वो काफी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल होने वाला है. So that water is again goes passes through this small area where the water velocity will be increased, and so the kinetic energy यहाँ पे जो होगा वाटर का वो काफी ज्यादा होगा. एंड दैट काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से जब वाटर को हम इस मटेरियल पे पास करवाएंगे, सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी पुट हाई प्रेशर ऑन टू द वर्क पीस. सो वर्क पीस पे काफी प्रेशर ये क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के डेवलप होने के कारण यहाँ से मटेरियल आपका रिमूव्ड हो जाएगा. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इन दिस प्रोसेस इज जनरली इरोड करता है मटेरियल को ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर. एंड वाटर प्रेशर जो होता है, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे प्रेशर एनर्जी में, और यही प्रिंसिपल पे इरोजन होगा इन द केस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग. So before going to the next topic, it is called the abrasive water jet machining. The abrasive water jet machining is the simple and similar to the abrasive water jet machining, but we use a abrasive particle with the water. हम यहाँ पे वाटर को हाई प्रेशर से भी एक मिनट यू मे ज्वाइन अगेन आफ्टर 1 minute. We will take a break 1 minute, then you may again join. एक मिनट का ब्रेक है, डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है. सो आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए. सो वी विल कंटिन्यू जस्ट